Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning to all. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Any idea about the last lecture? Yes, sir. What? Cardan method देखी थी. Yes, we discussed the Cardan's method at the last lecture. Okay, so with the continuation of that, we are discussing today Cardan's method and its example. So we start with that. Yes, is it visible to all? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So today I want to discuss about the Cardan's method. Okay. Before that, we already discussed about the fundamental theorem of algebra in last lecture. So I quickly go through it. So fundamental theorem of algebra is every non-constant single variable polynomial with complex coefficient has at least one complex root. Okay, that means हमने वो कल मैंने यहाँ पे राइटिंग करके भी लिखा था, given any positive integer and greater equal to 1 and any choice of complex number a0 a1 up to so on an such that an not equal to 0, then the polynomial equation an z raised to n plus and so on plus a0 is equal to 0 has at least one solution z belongs to c, means उसका एक solution जो है वो complex set में होगा ही होगा. Okay, that means one solution will be complex. You can also say that the fundamental theorem of algebra suggests that every equation of the nth degree polynomial has n roots. Okay, that means अगर आपके पास n डिग्री का polynomial है तो उसके पास कितने roots होंगे? N N. roots. N. N roots. Okay, so you can Roots. also say that. Now we go for the Cardan's method. So as we discussed, Cardan's method is used to solve the कैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्डन्स मेथड यूज होता Cubic. है? यस So, राइट. Cubic. Cubic equation. Okay, so we start with that. So Cardan's method, this method is used to find the roots of a cubic equation. Okay, so we want to find the roots of cubic equation, then you can apply the Cardan's method, or you can satisfy and you can do the all the steps of Cardan, then you have the three roots of that cubic equation. So consider a cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 where a not equal to 0, क्योंकि यहाँ पे a is equal to 0 हो जाएगा तो क्यूबिक नहीं रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाला a not equal to 0. Is it clear everybody? yes, sir. Yes, sir. Okay, now step number 1, we already discussed this, but I again discuss here because we are going to do some examples on it, so we go for it first. So step number 1, divide equation 1 by a. So अगर हम a से divide करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? We get x cube plus lx square plus mx plus b, where l is equal to क्या हो जाएगा? b by a, c is equal to m is equal to c by a and n is equal to d by a हो D by जाएगा. A. Yes, okay. So this is our step number 1. तो हमको step number 1 पता चल गया सबको. Yes, sir. Yes. Then step number 2. Yes, sir. To remove the x square term, means I want to remove, not I, Cardans want to remove the x square term. So for x square, we have to put x is equal to y minus l by 3 in above equation. Means अगर मैं हम x is equal to y minus l by 3 इसमें replace करते हैं, तो then the resulting equation is of the form y minus l cube L by 3 cube plus L y minus L by 3 square plus M y minus L by 3 plus N. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And if you solve this equation with the help of x minus y cube formula and x minus y whole square formula, then we will get the equation
like this, that means y cube मिलेगा plus something into y plus something constant term will be there equal to 0. तो जो यहाँ पे y के कोफिशिएंट है उसको हमने p बोल दिया एंड जो कांस्टेंट है उसको q बोल दिया. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. क्लियर एवरीबॉडी? स्टेप नंबर 2. Yes. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्टेटमेंट है उसमें x वाली टर्म नहीं है. कौन सी टर्म नहीं है? x वाली टर्म नहीं है. तो व्हाट इज माय एजम्पशन? मैंने कल बताया था. 1 by y. 1 by Yes. y. Yes, very good. So if the statement has not x, means x raised to 1 power term, then you have to do step number 2 with x is equal to 1 upon y. Okay, everybody got it? Yes. ओके, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया. नाउ वी गो फॉर द स्टेप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम? नाउ टू सॉल्व इक्वेशन 2 मींस इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए वी कंसीडर y इज इक्वल टू u प्लस v. नाउ इफ यू टेक क्यूब बोथ दी साइड देन यू हैव y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v क्यूब एंड इसको आप सॉल्व करेंगे y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v क्यूब को, तो हमको क्या मिलेगा? y क्यूब माइनस 3uvy माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes. Yes. Okay, so this is my step number 3. So what is my step number 4? ये दोनों का कंपैरिजन है ना. देखो, दूसरी एक बात बताता हूँ कि स्टेप नंबर 3 तो हर एक एग्जाम्पल में कॉमन ही रहेगा. इसमें कोई वर्डिंग में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि y इज इक्वल टू u प्लस v लेना है और इसका एक्सपेंशन यही मिलेगा. ओके, तो ये तो हर एक एग्जाम्पल में कॉपी ही है, मीन्स हमको ये लिखना ही बाकी रहेगा. बाकी तो इसमें कुछ भी u v कुछ भी चेंज नहीं होगा. ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. If you compare equation 2 and 3, then we have the value of p and q. So what is my p here? So यहाँ पे देखो क्या होगा? माइनस 3uv इज इक्वल टू p हो जाएगा एंड माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू q हो जाएगा. तो फ्रॉम दैट वी हैव uv इज इक्वल टू माइनस p बाई 3 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू माइनस q. यस और नो? Yes. Yes, sir. Now if you take cube both the side in first expression, so you have u cube into v cube is equal to minus p cube upon 27 and second expression is as it is, that means u cube plus v cube is equal to minus q. So is there any question up to step number 4? अरे सेकंड स्टेप है. Yes. स्टेप में x इज इक्वल टू y माइनस l बाई 3 है, वो कंपलसरी वही करना है या फिर? हाँ वही करना है, वही करना है. ओके. अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे बोला कि x वाला x रेज टू 1 वाला स्टेटमेंट में नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई लेंगे, लेकिन अगर x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो स्टेप नंबर 2 इज ओमिटेड ऑटोमेटिकली. यस सर. ओके, तो उसको तो करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप नंबर 3 से ही स्टार्ट हो जाएगा ना. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. यस. Okay, so this is the step number 1 2 3 4 of Cardan's method. Now we go for the step number 5. अब step number 5 में हम क्या कंसीडर करेंगे? Therefore u cube v cube are the roots of the equation. अगर roots of the equation लेंगे तो मैं इसे नया वेरिएबल t डिफाइन कर रहा हूँ. So t minus u cube t minus v cube is equal to 0 कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर. क्योंकि रूट से इसलिए हम लिख सकते हैं ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 हम रूट्स बोलते हैं. सेम तरीके से यहाँ पे u क्यूब v क्यूब रूट्स है, दैट मींस t माइनस u क्यूब t माइनस v क्यूब इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू open this bracket then you have t square plus qt minus p cube upon 27. Not perfectly this, but if you open this then what we have? T square minus t v cube minus u cube v plus u cube v cube is equal to 0. Now if you simplify this then t square minus u cube plus v cube into t plus u cube v cube is equal to 0. But as from step number 4 we have the value of minus u cube plus v cube. Yes or no? Yes.
सो इट इज माइनस क्यू है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो क्यू आएगा, सो आई राइट डाउन हियर टी स्क्वायर प्लस क्यू टी. नाउ सेम यू क्यू प्लस वी क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब अपॉन 27, सो वी हैव माइनस पी क्यूब अपॉन 27 इज इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन नंबर 4. सो इज देयर एनी डाउट इन स्टेप नंबर 5? No, sir. नो सर. No, sir. No. Then step number 6, the solution of equation 4. अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, yes or no? Yes, sir. sir. कैसे सॉल्व करेंगे? t is equal to minus b plus or minus square root b square minus 4ac upon 2a. क्लियर? तो ये जैसे ही सॉल्व करेंगे तो t is equal to u cube and v cube ऑलरेडी है, तो कैन आई राइट इन दिस वे u cube is equal to v cube? Yes, sir. क्योंकि हमने वही रूट्स लिया है ना, t इज इक्वल टू यू क्यूब एंड t इज इक्वल टू वी क्यूब, तो मुझे जो भी t मिलेगा वो मुझे यू क्यूब एंड वी क्यूब की वैल्यू देगा. क्लियर एवरीबॉडी? यस. ओके. अब Yes, sir. यू क्यूब वी क्यूब मिल गया, देन कैन वी फाइंड u एंड v? Yes, sir. यस सर. So that is our step number 6. The solution of equation 4 gives the value of u and v. Now if you have the value of u and v, then if you go back, then what is your y? Y means u plus v, so you have y. And if you go into step number 2, then your x will be y minus l by 3. T. Okay, so if you substitute here y and l, then you got one value of x, means one root of the given equation. That is your step number 6. So is it clear everybody, step number 6? यस. Yes. Yes, sir. Okay. Then last step, step number 7. अब हमारे पास एक रूट है तो हमको पता है वो सिंथेटिक डिवीजन. ओके, तो फॉर एग्जांपल आई हैव x इज इक्वल टू a, तो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से मैं x माइनस a इंटू स्क्वायर वाली पोलिनोमियल इक्वल टू 0 में फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर. Now this is your quadratic polynomial, so you can also factorize that. Then you will get your x is equal to something, x is equal to something, and x is equal to something. That means you have the three roots of the given equation, cubic equation. Okay, so that is your step number 7. So is there any doubt in our method? No, sir. Okay. सर Yes, yes, बेटा. टी स्क्वायर प्लस क्यू टी माइनस पी क्यू अपन 27 इज इक्वल टू 0. सर उसके बाद हमने वो टी वाला इक्वेशन लिया सर, उसका आंसर हमें यू क्यूब एंड वी क्यूब मिलेगा. हाँ, जो भी होगा वो t होगा. यस और नो? यस. ओके, अब t आया तो हमने यहां से हम क्या लिखे थे? t इज इक्वल टू यू क्यूब एंड t इज इक्वल टू वी क्यूब, दो रूट से ऐसा नहीं लिखे थे हम? यस सर. यस. तो जो भी t होगा वो u क्यूब एंड वी क्यूब ही होगा ना. तो सर वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, वो सर कैसे आया? जो भी होगा वो हम u, एक वैल्यू को u बोलेंगे, u क्यूब बोलेंगे, दूसरी वैल्यू को v क्यूब बोलेंगे. यस सर. तो उससे हमको u एंड v मिलेगा कि नहीं? यस. डन? एवरीबॉडी गॉट इट? सर स्टेप नंबर 4 बताइए ना एक बार. ओके, स्टेप नंबर 4 वेरी सिंपल स्टेप. क्या करना था? कंपैरिजन, सिर्फ ओनली कंपैरिजन. सर ओके, आई अंडरस्टैंड. Okay. Then can we go for the example, everybody? यस सर. Yes, sir. Okay, so first example, find the roots of x cube minus 15x square minus 33x plus 847 is equal to 0. So what is my step number 1? A से डिवाइड कर दे. A से divide वो कर 1 ही है. लेकिन One यहाँ is- ये yes, यहाँ पे a is equal to 1 ही है, तो step number 1 is automatically omitted. Yes, sir. यस. यस. Yes, sir. Okay. Now what is my step number 2? 5 minus X L by square. 3.
substitute. Y minus L by 3. If you compare this expression with x cube plus lx square plus mx plus n is equal to 0. So what is my L? Minus 15. Minus 15. minus 15. M is equal to -30. minus 33 and N is equal to 847. Clear? Okay. So my step number 2 is we are given that ये मैंने 1 दे दिया. Okay. Now here L is equal to minus 15. So now take x is equal to y minus L by 3. So if you take y minus L by 3, that x is equal to y minus 5. So we have y plus 5. Is it clear? Step number 2, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको y प्लस 5 किस में सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन 1 में. X. यस. तो आप जैसे ही इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y प्लस 5 क्यूब माइनस 15 y प्लस 5 स्क्वायर माइनस 33 y प्लस 5 प्लस 847 इज इक्वल टू 0. तो आप इसको एक्सपांड करो. चलो, तो क्या होगा? y क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 15y y प्लस 5 होगा ये इसका. Yes, sir. ओके. माइनस 15. अब स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25. यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो माइनस 33y माइनस 165 प्लस 847 इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू क्लब ऑल द टर्म देन यू कैन सी हियर 15y स्क्वायर जो है यहाँ पे. 1 मिनट, आई चेंज माय कलर. यस, ये स्टेप देखो आप. 15y स्क्वायर एंड यहाँ पे देखो माइनस 15y स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली वो ऑमिट हो गया. Yes, sir. ओके. सो y क्यूब माइनस y वाली जो अगर आप टर्म क्लब करेंगे तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 5 वाला है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे. उसको अगर आप क्लब करेंगे तो माइनस 108y मिलेगा प्लस 432 इज इक्वल टू 0. चलो इसको वेरीफाई करो तो जल्दी, यही आ रहा है कि नहीं? Got it? Yes, sir. Yes. वेरीफाई करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, पीछे हमारे रूट्स भी गलत हो जाएंगे. तो प्लीज वेरीफाई इट क्विकली एवरीबॉडी. इतना टाइम लगाएंगे तो कब एग्जाम्पल कंप्लीट होगा? डू फास्ट. Yes, sir. सही है. सही है ना? ओके. आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम मोर 2 to 3 स्टूडेंट. प्लीज कंफर्म मी. यस सर, सही है. Okay. Okay. Then this is our step number 2. We have completed step number 2. Now what is my step number 3? Y equals y to U plus V. u plus v U plus V डालना है. Y is equal to. Yes, y is equal to u plus v. That means my step number 3 is y is equal to u plus v. Then y cube is equal to u plus v cube. अब इसको सॉल्व करेंगे तो y cube is equal to u cube plus v cube plus 3uv u plus v, और उससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा y cube minus 3uv y minus u cube plus v cube is equal to 0. That is equation number 3. So मैंने बोला था कि ये तो हर एक एग्जाम्पल में सेम ही रहेगा, है ना? सेम. Yes, sir. Okay. Now what is my step number 4? Step number 4 क्या करेंगे? Compare करो. Compare equation number 2 and 3. Yes, compare equation 2 and 3. So if you compare, so what is my minus 3uv? Minus 108. Okay, that means 3uv is equal to 108. Yes or no? Yes, sir. Yes. If you find uv, so uv is equal to 108 by 3. So it is 36. Clear? Yes, sir. And next u cube plus v cube is equal to minus 432. Yes, sir.
Yes, sir. Yes. दिस इज माय स्टेप नंबर 4। लेकिन यहाँ पे एक चीज बाकी बचा, यू क्यूब वी क्यूब करना पड़ेगा ना। तो इफ यू डू यू क्यूब वी क्यूब, ओके यहीं पे कर देते हैं। तो यू क्यूब वी क्यूब क्या हो जाएगा, 36 क्यूब है ना। ओके डन everybody। Yes, sir. Yes, sir. So this is my step number 4। what is my step number 5? U cube और V cube को रूट्स लेने हैं। Yes, we know that u cube v cube are the roots of the equation. So we have t square minus u cube plus v cube t plus u cube v cube is equal to 0. Now substitute the value of u cube v cube and minus u cube plus v cube here. So what is my minus u cube plus v cube? It is 432, okay, and u cube plus v cube 36 cube is equal to 0. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर प्लस 432t प्लस 6 कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 36 स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स t प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके सो इसके दो रूट्स कौन कौन से हुए, t प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू 0। यस और नो? Yes, sir. सो मेरा t हुआ माइनस 6 क्यूब एंड t हुआ माइनस 6 क्यूब। सो जो मेरा u क्यूब था, एक u क्यूब रूट था, उसको मैंने माइनस 6 क्यूब बोला। जो दूसरा मेरा v क्यूब रूट था उसको मैंने माइनस 6 क्यूब बोला। कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो यस, तो यहाँ तक जो किया वो हमारा स्टेप नंबर कौन सा था, 5। स्टेप नंबर 6 था इसको सॉल्व करना और u एंड v निकालना। तो t इज इक्वल टू माइनस 6 क्यूब मैंने जैसे बताया ऐसे। नाउ इफ यू फाइंड u एंड v बाय यूजिंग बोथ द एक्सप्रेशन, मींस u क्यूब इज इक्वल टू माइनस 6 क्यूब है तो u मेरा कितना होना चाहिए, माइनस 6, v कितना होना चाहिए, माइनस 6। क्लियर? सो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू माइनस 6। सो मेरा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ इफ आई गो फॉर बैक, सो y इज इक्वल टू u प्लस v था तो मेरा 12 हो गया। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. सो मेरा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस 5 था, हमने किया था y माइनस l बाई 3 करके, तो हमारा y प्लस 5 था। तो y की जगह पे माइनस 12 रिप्लेस करो। सो माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 7। दैट मीन्स we have the one value of x, it is x is equal to minus 7. So is there any doubt in this step? No, sir. No, What about others? Give me your confirmation quickly. No, sir. No. Okay. अब एक रूट हमारे पास है तो what we can do next? Synthetic division, yes or no? Yes, sir. ओके तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हो, यहाँ पे देखो जो भूल गए हो, x इज इक्वल टू माइनस 7 मुझे यहाँ पे लिखना है। और जो भी मुझे गिवन पोलिनोमियल है ना, जो भी गिवन पोलिनोमियल मीन्स कौन सा, नंबर 1। ओके U minus. हाँ, तो ये जो है उसका कोफिशिएंट मुझे लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का कोफिशिएंट 1, सेकंड का -15, थर्ड का -33 एंड फोर्थ का 847। ओके तो यहाँ पे देखो उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। सो यू कैन सी हियर, हाँ दिस इज अवर गिवन इक्वेशन। सो 1 -15 -33 847। 847. अब 0 से स्टार्ट करना है, 0 आना चाहिए तब जाके मैंने सही किया ऐसा माना जाएगा। ओके तो जो भी वर्टिकल है उसका एडिशन करना है एंड जो भी क्रॉस होगा उसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो 1 + 0 कितना होगा, 1. सो 1 × -7 -7 -15 + -7 -20. -22 × -7 154.
154. 154 minus 33. 120. 121. 121. Perfect. Okay. Yes. So 121 into minus 7. Minus 847. minus What is 847. So minus 847 plus 847 0. Done. Okay. तो यहां तक कोई कंफ्यूजन एनीबडी? No, no, sir. sir. No, sir. No, sir. अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे है उसको x के साथ ले जाना है, तो यहाँ पे माइनस है तो x के साथ ले जाऊंगा तो +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x एंड कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट -22, सो -22 आ गया। अब कांस्टेंट है +121, तो 121 इक्वल टू 0। Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. गिवन इक्वेशन था उसको मैंने इस हिसाब से लिखा, जो भी सिंथेटिक डिवीजन से। सो x + 7 x स्क्वायर -22x + 121 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन इजीली फैक्टराइज दिस। क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन? 11 It's minus 11 का whole और square. minus 11. x + 7 into x - 11 square is equal to 0. Yes or no? Yes. Okay. Now if you find the roots of this, then x is equal to -7, 11 and 11. So this is the solution of the given cubic equation. So is there any doubt in this example? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Please give me your confirmation, every student. No, No sir. doubt. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Hence the roots of the equation 1 are -7, 11 and 11. Okay. Now we go for the second example. So find the roots of 2x cube minus 7x square plus 8x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगेन फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। Divide by A. डिवाइड बाय ए। ओके, तो डिवाइड बाय ए मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे हाँ, डिवाइड बाय ए करना था तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x क्यूब माइनस 7/2 x स्क्वायर प्लस 8/2 x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। सो माय L इज इक्वल टू -7/2, m is equal to 8/2 and n is equal to -3/2. Okay, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So first step is completed. Now second step, Y minus L by 3. yes, y minus L by 3, then x is equal to y plus 7/6. Okay, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं y plus 7/6 के साथ जाऊंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया ना अब तो। Yes. Yes. ओके, तो सबसे पहले हम ये फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए ट्राई करेंगे और ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा हमारी मेथड में। तो मुझे 6 जो है उसको रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करूंगा? एनी गेस फॉर? 6x is equal to 6y plus 7. नो, देखो जब भी आपको इस सुनो सुनो मेरी बात, डोंट डिस्टर्ब मी, फिलहाल मत करो। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मुझे ये फ्रैक्शन फॉर्म मिलता है, ओके, p/q फॉर्म है, तो आपको इसको रिमूव करने के लिए ईच टर्म को उसकी मल्टीप्लिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे भी आपको ये रिमूव करना है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा? देखो, अगर मुझे ये 6 गायब करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 6⁻0 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेकंड टर्म में क्या करूंगा? 6⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा। थर्ड टर्म में क्या करूंगा? 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा एंड लास्ट टर्म में क्या करूंगा? 6 क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट डिनोमिनेटर। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, तो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पे
सो मैंने क्या किया 2x³ इंटू 6⁻0 माइनस 7x² 6⁻1 प्लस 8x² माइनस 3 इंटू 6³ इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो नया इक्वेशन मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. और इसके जो भी रूट्स होंगे उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन का रूट्स मिल जाएगा कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो जो ये नया इक्वेशन मिला उसको हम सॉल्व करेंगे और इसके जो भी रूट्स मिलेंगे उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, दैट इज द रूट्स ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन। यस और नो? सर Yes, पर हमें sir. क्यों करना है? नहीं सर, हम दोनों साइड कर देंगे ना 6 से मल्टीप्लाई, तो फिर लास्ट में क्यों करना पड़ेगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 रूट्स है x माइनस ए, x माइनस बी एंड x माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको मुझे सॉल्व करके एक्सप्रेशन लास्ट वाला बताओ। चलो x³ x² x एंड कांस्टेंट आएगा ना इक्वल टू 0। चलो मुझे सारे के कोफिशिएंट बताओ। चलो तो पहला a प्लस बी प्लस सी। किसका? x³ का? नहीं सर, h स्क्वायर का। हाँ, a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड। h का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी एंड ए कांस्टेंट बी के बी। सी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन यहाँ पे। अगर मुझे x² के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं कितना हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी 1, क्योंकि ये तो एडिशन में है ना, तो 1 ही पावर में इंडिविजुअल ऐड कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सॉरी। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कितना कर सकता हूँ? ओनली 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम कितना पावर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 2। और यहाँ पे 3। इसीलिए हमने उसी हिसाब से किया। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस। Yes, sir. ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। नो सर। ओके, अब ये जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को, और जो भी इसके रूट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे मिला a, b एंड c। ओके, तो मुझे ये इक्वेशन के रूट्स बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा ना। तो a बाई 6, b बाई 6 एंड c बाई 6 जो भी होगा दैट इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड जो a b c है किसके रूट्स होंगे? ये नया इक्वेशन जो लिया है हमने उसके। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. एवरीबडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन स्टेप नंबर 1 से जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 से हमने किया तो मेरा L हो जाएगा -42/2, इट इज -21। ओके, अब स्टेप नंबर 2, x इज इक्वल टू y माइनस L/3, तो y माइनस -21/3, तो y प्लस 7। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन रिमूव हो गया कि नहीं? Yes. यस सर। ओके, अब Yes. कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 के हिसाब से मुझे एवरीवेयर में y प्लस 7 रखना था तो मैंने रख दिया, उसको सॉल्व किया। अब कौन से इक्वेशन में रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी सिचुएशन में इक्वेशन 2 में रखना है, गिवन इक्वेशन में मत रख देना। इज इट क्लियर? यस सर, डिवाइड Yes, बाय 6 Yes, वाले। sir. क्योंकि पूरी प्रोसीजर हम 2 के लिए करेंगे एंड उसमें से हम 1 को डिड्यूस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये वेरीफाई कर लेना, मैं बोल रहा हूँ अभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना ये कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो इसको आप वेरीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 2y³ माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो y³ माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में तो मैंने बोला था कॉपी ही करना है, तो y इज इक्वल u प्लस v, y³ इज इक्वल u प्लस v³। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो y³ माइनस 3uv y माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय स्टेप नंबर 3। क्लियर एवरीबॉडी? यस।
Yes, sir. अब स्टेप नंबर 4, कंपैरिजन ऑफ 3 एंड 4। तो कंपैरिजन करेंगे तो मेरा 3uv इज इक्वल टू 3 हुआ, सो uv इज इक्वल टू 1 एंड u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू 2। लेकिन इससे मुझे अभी एक डिड्यूस करना पड़ेगा u क्यूब v क्यूब, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ओके, Yes. so this is my step number 4. My step number 5 क्या करना था, consider u cube v cube. Okay, so we know that u cube v cube are roots of the equation, so t square minus u cube plus v cube t plus u cube v cube is equal to 0। तो उसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा t square minus 2t plus 1 is equal to 0, और ये तो आपका सिंपल हो गया, so t is equal to 1 1। yes or no? Yes, sir. Okay, so this is my step number 5. Now step number 6, मुझे t मिल गया है तो मुझे क्या मिल गया, u cube and v cube। Yes, sir. so u cube मेरा 1 and v cube भी मेरा 1 है यहाँ पे, तो u मेरा क्या हो जाएगा, 1. 1. v भी 1। तो उसकी हेल्प से मैं पीछे चला जाऊंगा, y मिलेगा, सो y इज इक्वल टू u प्लस v, तो 2 हो गया। अब x मेरा था, x इज इक्वल टू y प्लस 7, तो y की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे तो 9। सो एक रूट मुझे मिल गया है, x इज इक्वल टू 9। सो माय स्टेप नंबर 7 क्या है, Synthetic. Synthetic. या सिंथेटिक डिवीजन। तो अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 के साथ सिंथेटिक डिवीजन करना है, जो इक्वेशन 2 था उसका सिंथेटिक डिवीजन, कीप इन योर माइंड। तो मेरा इक्वेशन 2 ये था, यस और नो? Yes, sir. Yes. 2 minus 42 288 and minus 648। ओके, सो 0 से स्टार्ट करना है, लास्ट में 0 आना चाहिए, तब जाके हमारी कैलकुलेशन सही है। तो 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 9 18. 18. 18 minus 42 माइनस 24 24. Minus 24. माइनस 24 पक्का, हाँ पक्का। माइनस 24। ओके, माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 9, 216. 216. minus 216। ओके, सो माइनस 216 प्लस 72. 72 into 9 648. 648। So 648 minus 648, it gives me 0। Clear? Yes, sir. अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 9 को यहाँ पे ले जाओ, सो x माइनस 9। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया है 2, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72 इक्वल टू 0। यस और नो? Yes, sir. अब ये मेरा इसका फैक्टराइजेशन हुआ, x माइनस 9 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72। ओके, अब इसमें से मेरे पास तो इक्वल टू 0 है ना, तो 2 कॉमन निकाल के इसको 0 के साथ ले सकता हो कि नहीं? Yes, sir. तो मेरा Yes. x इक्वेशन मिलेगा x माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब इसका तो आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे, चलो बताओ। 6. X minus 6 का होल स्क्वायर है। x minus 9 x minus 6 whole square is equal to 0। so x is equal to 966। ये किसके रूट्स मिले, Second इक्वेशन इक्वेशन 2 के। अब हमको जो इक्वेशन दिया था उसके रूट्स क्या होंगे, divided by 6. divided by 6। hence the roots of the equation 1 are first 9 by 6 6 by 6 6 by 6, तो क्या होगा 3 by 2 1 1। so is there any doubt, any question in this example? Sir. Sir. yes yes MCQ में पूछा जाए तो रूट तो 2 ही कहेंगे ना, 3 by 2 और 1। 3 by नहीं 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 नहीं
वही गलती मत करना विराज। मैंने इसीलिए आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्यों डिस्कस किया जाता है यहाँ पे, कि आपको जितने ऑर्डर का डिग्री दिया है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है, उतने रूट्स तो दिखाने ही है। अगर उसमें से आप एक भी ओमिट करते हो तो इट फेल्स। डन। ओके सर, तो 3 ही लिखना है ना, सेम हो तो भी। हाँ 3 ही लिखना है। अगर आपको 3 ऑर्डर का दिया है तो 3 डिग्री का दिया है तो 3, 4 डिग्री का दिया है तो 4। आप ऐसा नहीं कि रिपीटेशन हो रहा है इसलिए उसको स्किप करेंगे, नो, क्योंकि यहाँ पे देखो x के 3 फैक्टर है तो 3 रूट्स हुए कि नहीं? यस। ओके, सो डोंट डू दैट। ओके, ओके सर। नाउ इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी? जल्दी बोलो। नो सर, नो। नो सर। Okay, then next example देखो, it is different from 1 and 2. So find the roots of x cube minus 18x plus 35 is equal to 0. तो इसमें कौन कौन से स्टेप नहीं करना पड़ेगा? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट। सो थर्ड तो हमारा रिपीटेशन है। ओके, तो थर्ड यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब थर्ड देखो, ये दिखाना तो है हमको, है ना, तो y माइनस एल बाई 3 करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। सो x इज इक्वल टू वाई इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो y क्यूब माइनस 18y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फोर्थ के साथ, सॉरी थर्ड के साथ लेंगे तो y इज इक्वल यू प्लस वी लेना था, y क्यूब इज इक्वल यू प्लस वी क्यूब, वो तो कॉपी ही है, सॉरी। हाँ ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा y क्यूब माइनस 3 uvy माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। यस सर। यस। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में क्या करना था? कंपैरिजन। कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन से मुझे क्या मिला? uv इज इक्वल टू कितना? 6 u क्यूब v क्यूब माइनस 35। माइनस 35। माइनस 35। ओके, तो यहाँ पे देखो u v इज इक्वल टू 6, u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू माइनस 35। सो माय स्टेप नंबर 4 इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 5 क्या था? रूट्स लेना है, तो t माइनस u क्यूब t माइनस v क्यूब करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब की जगह पे हम 35 सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमको मिला है वो, एंड u क्यूब v क्यूब मीन्स 6 क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, दैट मींस t स्क्वायर प्लस 35t प्लस 216 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो कौन सी मेथड है हमारे पास? माइनस बी वो स्क्वायर माइनस प्लस बी अंडर प्लस बाई माइनस 2a। वेरी गुड। सो यहाँ पे माइनस 35 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स आपका होगा 35 स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 1, c मीन्स 216। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। ये वेरीफाई करना है 361 आ रहा है कि दूसरा कुछ आ रहा है। आ रहा है सर। यस आ सर। रहा है। यस Okay. सर, यही। So minus 35 प्लस और माइनस रूट 361 डिवाइड बाई 2, तो रूट 361 क्या होगा? 19। So minus 35 plus or minus 19 divided by 2. Is it true? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So minus 35 plus 19 by 2 and minus 35 minus 19 by 2. तो कितना आंसर आ रहा है बताओ? चलो -8 और -27। पक्का? हाँ सर। यस सर। Okay. यस। So t is equal to -8 and t is equal to -27. तो इसमें हमको क्या करना है? This is my u cube and v cube. Yes or no? Yes, sir. So u cube is equal to -8 and v cube is equal to -27. तो इससे मेरा u क्या हुआ? -2 -2 and v -3 -3। आप ये दोनों को चेंज भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमको तो बेसिकली क्या चाहिए? u प्लस v में ही चाहिए। आप देखो y जो मुझे चाहिए वो कैसे आएगा? u प्लस v में ही आएगा ना? यस और नो?
Yes, sir. ओके सो y इज इक्वल टू -2 -3 सो -5 होगा सो x मेरा था x इज इक्वल टू y था क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म नहीं था ना इसीलिए तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5 तो एक रूट हमारा हो गया x इज इक्वल टू -5 इज इट क्लियर एवरीबॉडी यस सर। अब मुझे क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन ओके तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पे देखते हैं चलो सिंथेटिक डिवीजन इसके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बीच में x स्क्वायर नहीं है ओके तो यहाँ पे लुक एट हियर सो यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरा -5 है अब मुझे उससे सिंथेटिक डिवीजन करना है तो मेरा एक्सप्रेशन क्या था वो मुझे पता होना चाहिए तो एक्सप्रेशन क्या था x³ माइनस 18x प्लस 35 ओके तो नेक्स्ट में होगा ही होगा यहाँ पे लिखा होगा ओह नहीं लिखा है देखो तो क्या होगा पीछे दिया है x² माइनस 18x -5 यहाँ पे कर रहा हूँ देखो सिंथेटिक डिवीजन ये था x³ माइनस 18x प्लस 35 सो 1 अब x² वाला जो नहीं है ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिखाना है यहाँ पे 0 कंपल्सरी तो आपका आंसर नहीं आएगा -18 यहाँ पे 35 ओके 0 से स्टार्ट करना है 0 लाना है तो 1 प्लस 0 1 1 इंटू -5 -5 -5 into -5 25 25 25 25 18 7 -35 so 35 minus 35 is equal to 0 so यहाँ पे कैसे लिखेंगे x plus 5 और यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट 1 minus 5 7 okay so this is the factorization so x plus 5 x square minus 5 x plus 7 is equal to 0 अब इसके रूट्स तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करेंगे माइनस b वाली फॉर्मूला से सो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 28 होगा ओके है ना ओके डिवाइड बाय 2 अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 ओके चलो यहाँ पे i कैसे है वो दिखा देता हूँ 5 प्लस और माइनस रूट कितना होगा ये -3 हाँ यहाँ पे 5 प्लस और माइनस √3 स्क्वायर आएगा बाई 2 तो यहाँ पे 5 प्लस और माइनस i बाहर चला जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 यस और नो yes sir दो रूट आपको कॉम्प्लेक्स मिले एंड एक रूट आपको रियल मिला ओके सो x इज इक्वल टू -5 x इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस i√3 बाई 2 तो यहाँ पे टोटल 3 रूट्स मिल गए हमको हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 1 आर -5 5 प्लस और माइनस i√3 बाई 2 सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल एनीबॉडी sir ओके sir यस एनी क्वेश्चन यस सर बेटा सिंथेटिक डिवीजन से ना करना हो तो सर दूसरी मेथड्स है तो कौन सी मेथड कंपलसरी तो नहीं है ना सर आपके पास कौन सी सर मेथड है हमें सब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मालूम है और सम ऑफ रूट्स मालूम है तो एक रूट तो मालूम पड़ गया हमें तो इससे सर 2 इक्वेशन बनेगी और निकल जाएगा लेकिन 2 इक्वेशन तो दूसरा इक्वेशन आप लाओगे कहां से दैट इज माय बिग क्वेश्चन सर एक बार सर ये इक्वेशन है ना सर h³ माइनस 18x प्लस 35 तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए 35 और सम ऑफ रूट्स है हमारे 0 ओके अभी 3 में से एक रूट मालूम है हमें -5 तो 2 रूट बचे ना तो सर 2 इक्वेशन है हमारे पास तो वो बेटा ऑलरेडी एग्जांपल लेंथी और आप उसको भी लेंथी बना रहे हो अंडरस्टैंड सर कोई केस में सर डायरेक्ट आ जाएगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आप सिंथेटिक डिवीजन वहां पे नहीं दिखाओगे तो आप थोड़ा मौका दे रहे हो एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने के लिए अंडरस्टैंड आप नहीं दिखाएंगे तो फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मुझे तो इससे ही लेना देना है ओके तो आप सीधा लिखेंगे वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कोई एग्जामिनर ऐसा बोलेगा कि नहीं आई वांट दिस तो क्या करोगे यस
ओके ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लिख रहे हो और नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अंडरस्टैंड? यस ओके तो थोड़ा उस हिसाब से देख लेना, क्लियर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपका पेपर चेक करूं, क्लियर? सर ये बाजू में दिखाने का सिंथेटिक डिवीजन? हाँ दिखाने, पास में ही दिखा देने का। मैंने आपको कैसे दिखाया यहाँ पे, ऐसे ही आप साइड में लाइन करके दिखा सकते हो कि नहीं? यस ओके सर सिंथेटिक डिवीजन ना करे, सिर्फ वैसे अपना खुद का डिवीजन करे तो चलेगा? वही तो उसने पूछा, वही तो मैंने आंसर दिया। सर लिखे भी ना आते नहीं सिंथेटिक सर, डिवीजन से कर रहे हैं। वैसे बाजू में दिखाएंगे कि हमने ऐसे डिवीजन किया हाँ तो दिखाएं। चलेगा? नॉर्मल वैसे डिवीजन सर, सिंथेटिक डिवीजन नहीं। नहीं बेटा, इसमें क्या है कि हमने जो स्टेप किए उसमें सिंथेटिक डिवीजन लिखा है ना? तो यू हैव की टू मेथड ही है। हाँ अंडरस्टैंड? ओके क्योंकि हम जो स्टेप कर रहे हैं उसमें हम बोल ही रहे कि इट इज द सिंथेटिक डिवीजन, है ना? तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा। डन? हाँ सर वो लाइन लिखेंगे। क्या? हाँ सर वो लाइन नहीं लिखेंगे ना सर। कार्डन मेथड है ना, उसमें लिखा हुआ है कि करना ही है कंपल्सरी। मैंने बेटा आपको एक सिंपल आंसर दिया कि अगर एग्जामिनर आपका मार्क्स काटना चाहता है तो व्हाट यू डू? समझ रहे सर। नाउ आई थिंक यू आर स्मार्ट, आपको पता चल गया कि नहीं? यस सर। Okay, okay. So then, in next lecture, means on Saturday, okay, Saturday we will discuss about the Ferrari's method. It is used to find the solution of the biquadratic equation, that means fourth degree equation. Okay. So, is there any doubt, any question in today's session? नो सर। नो सर। नो सर। Okay. So, if you have no doubt, no question, then Sir. good. Yes, yes. आज वाली पीपीटी की फर्स्ट